Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. We are going to start chapter 3rd Water Resources of the class 10th Geography. So let's begin. You already know that 3/4 of the earth surface is covered with water, but only a small proportion of its account for fresh water that can be put to use. Means आप सभी को पता है कि जो इंडिया का क्या तो आप सभी को पता है कि जो अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर है, लेकिन कुछ ही प्रोपोर्शन ऐसा है विच इज अ फ्रेश वाटर एंड कैन बी पुट टू यूज. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. जो हम फ्रेश वाटर है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ मीन्स फ्रॉम द रिवर्स एंड द ग्राउंड वाटर दैट इज कॉन्टिन्यूअली बीइंग रिन्यूड, जिसे समय समय पर रिन्यू किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. जितना भी वाटर मूव होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू, वो इंश्योर करता है कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है. यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how it is that countries and region around the globe suffer from the water scarcity. मीन्स जब आपको पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो 3/4 वाटर से कवर है, उसके बावजूद जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उन्हें वाटर के लिए सफ़र करना पड़ता है. वाई is it predicted that by 2025 near 2 billion people will live in absolute water scarcity? और ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया जाता है, ऐसा क्यों भविष्यवाणी की जाती है कि 2025 तक 2 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो वाटर स्कार्सिटी में जी रहे होंगे. So, water scarcity and the need for water conservation and management. Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. हमें पता है कि जो वाटर है वो काफ़ी मात्रा में है, ग्रेट अबंडेंस एंड रिन्यूएबल है, तो हम ऐसा डिफ़िकल्ट होगा ये कि हम वाटर स्कार्सिटी से सफ़र करेंगे. The moment we speak of water shortages, we immediately associated with regions having low rainfall or those that are drought prone. तो जब हम वाटर शॉर्टेज के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लिक होता है कि द एरियाज वी आर हैविंग लो रेनफॉल एंड विच आर ड्रॉट प्रॉन, यानी जहाँ पर सूखा है. We instantaneously visualize the desert of Rajasthan and the women balancing many matkas or the earthen pots used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. जो डेजर्ट है राजस्थान का और जो वुमेन्स पानी भर भर के दूर दूर से लेकर आती हैं. ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरी ओवर स्पेस एंड टाइम. जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्स की वो डिपेंड करती है फ्रॉम स्पेस टू स्पेस एंड टाइम टू टाइम, मेनली ड्यू टू वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल precipitation. It is because in the change in the seasons and the annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by over exploitation. जो water scarcity का main reason है वो ये है over exploitation, excessive use करना, unequal access to water among different social group, यानी कि किसी के पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वाटर की, किसी के पास कम है. Where is then water scarcity likely to occur? So as you have read in a hydrological cycle that fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. मीन्स जो फ्रेश वाटर है हम 3 तरीके से मिल सकता है हमें, बाय द precipitation, by rivers or running water and the groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है?
Many of our cities are such example. हमारी बहुत सारी cities इस चीज़ के example है. Thus, water scarcity may be an outcome of a large and growing population. जो water scarcity है, it may be because of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. और बहुत ज़्यादा demand होती है water की. A large population require more water, not only for domestic use but also to produce more food. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वाटर की यूज़ होगी. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being over-exploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. सबसे ज़्यादा जो वाटर कंज्यूम करता है वो होता है इरीगेटेड एग्रीकल्चर, होता है इरीगेटेड एग्रीकल्चर. जिस फार्मिंग एरिया पे एग्रीकल्चर में वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है. नाउ इट इज़ नीड टू रिवॉल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स. अब हमें ज़रूरत है कि हम रिवॉल्यूशन लाएं अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, which developed by the drought and resistant crop and dry farming techniques. You may have seen in many television advertisement that most farmer have their own wells. आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि कुछ फार्मर्स होते हैं उनके अपने खुद की वेल होती हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं अपने फार्म्स में, ताकि वो इरिगेशन कर सकें अच्छा प्रोडक्शन के लिए. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस could result in? लेकिन क्या आपने सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? That is may lead to falling groundwater level, adversely affecting water availability and food security of the people. इसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग वेल बना लेंगे, अलग अलग ट्यूबवेल्स बना लेंगे, उससे जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो कम हो जाएगा और वाटर की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है, और अगर वाटर नहीं होगा तो फूड की सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी. Post independent India witnessed intensive industrialization and urbanization. Means after independence India ने industrialization accept किया and urbanization किया country में, which creating vast opportunity for us, जिसकी वजह से बहुत सारी opportunities हमें मिली हैं. Today, large industrial houses are as commonplace as the industrial unit of many MNCs. मीन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो आजकल कॉमन प्लेस हो चुके हैं एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द मैनी MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. The ever increasing number of industries has made matter worse by exerting pressure on existing fresh water resources. जो इंक्रीज है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी तो वाटर की ज़रूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी और जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम. मीन्स इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा सोर्स है जो वाटर यूज़ करता है और उसे वाटर इसलिए भी चाहिए क्योंकि उसे पावर जनरेट करनी है. Much of this energy comes from hydroelectricity power. Much of this energy comes from hydroelectric power. जो बहुत सारी ये एनर्जी है ये ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ली जाती है. टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. मीन्स इंडिया की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो 22% है टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. मोर ओवर, multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem. मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस हुई, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, वाटर की ज़रूरत बढ़ी, उसकी वजह से ज़्यादा वाटर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, साथ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो गई. इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग societies or colonies in the cities, you would find that the most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. आपने अर्बन एरियाज में देखा होगा कुछ सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज में कि हर घर में अपना एक ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लगा हुआ है. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being over exploited and have caused their depletion in several these cities.
मीन्स इसकी वजह से जो वाटर का डिप्लीशन है वो और ज़्यादा होता है और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है वाटर. So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity. अब तक तो हमने देखा quantitative aspect से. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffer from water scarcity. मतलब अब हम ऐसी रीजन्स को देखेंगे, ऐसी कंडीशंस को देखेंगे जहाँ पर वाटर तो है लेकिन फिर भी वाटर स्कार्सिटी फेस की जाती है. दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. ये स्कार्सिटी क्यों हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी, यानी कि वाटर की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted. उनमें से कुछ तो पॉल्यूटेड है बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो हजार्डियस हो जाते हैं मैन के यूज के लिए. तो इसका मतलब है कि वाटर तो है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए उसे यूज नहीं किया जा सकता. You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. तो आप समझ ही गए होंगे कि जो ज़रूरत है वो ये है कि वाटर को कंजर्व किया जाए, मैनेज किया जाए. टू सेफगार्ड फ्रॉम द हेल्थ हजार्ड, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, कॉन्टिन्यूशन ऑफ आर लाइवलीहुड जीने के लिए, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, और साथ ही साथ डिग्रेडेशन होने से बचाने के लिए नेचुरल इकोसिस्टम को. ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल इम्पोवर्श दिस रिसोर्सेज. मतलब जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है और जो अच्छे से मैनेजमेंट नहीं है वाटर रिसोर्सेज का, कैन कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है हमारी लाइफ पर. मूविंग फॉरवर्ड, multi-purpose river projects and integrated water resources management. But how do we conserve and manage water? Now here is a question कि हमने कह तो दिया कि water को conserve करना है, manage करना है, लेकिन कैसे? So archaeological and historical records show that from ancient time we have been constructed sophisticated hydrological structures like dam built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. तो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि हम पुराने समय से ही, बहुत पुराने समय से हम वाटर को मैनेज करने के, कंजर्व करने के लिए डैम्स बिल्ड करते हैं, रिजर्वायर्स बनाते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं ताकि इरिगेशन अच्छे से हो सके फील्ड्स का. सो नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन, और हमने इसी ट्रेडिशन को आज भी कंटिन्यू किया है इन द मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन्स. So what are the dams and how do they help us in conserving and managing water? So अब हमें बताना है कि डैम्स क्या होती हैं और इससे कैसे कंजर्व किया जा सकता है वाटर. Dams were traditionally built to impound rivers and drain water that could be used later to irrigate agriculture fields. Means डैम वो होते हैं जो ट्रेडिशनली पुराने तरीके से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर वाटर भी रिचार्ज होता है एंड रेन वाटर को भी यूज किया जा सकता है बाद में एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए. टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. आजकल जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है वो सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं होता कि इरिगेशन करना है, बट फॉर ऑल्सो फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग. और क्या क्या यूज़ होता है इसका? वाटर सप्लाई करना डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फ्लड को कंट्रोल करना, रिक्रिएशन करना, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग करवाना. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impound water are integrated with one another. तो जो डैम को आजकल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोला जाता है कि बिकॉज इट वर्क्स मल्टीपली, means it did many works together. For example, in Satluj Bias river basin, the Bhakra Nagal project water is being used both for hydel power production and irrigation. जो भाखरा नागल डैम है सतलुज ब्यास रिवर बेसिन पे, उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किया जाता है और इरिगेशन का भी काम किया जाता है. सिमिलरली द हीराकुड
project in the Mahanadi Basin integrates conservation of water with flood control. जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन पे, वो कंजर्व करता है वाटर और कंट्रोल करता है फ्लड. Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach. जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं ये आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉन्च गए थे फॉर द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, were thought of as the vehicle that would lead to the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. इस मोटिव से ये डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि जो हमारी जो कॉलोनियल पास्ट था उसने पूरी कंट्री को हैंडीकैप बना दिया था. तो एज अ व्हीकल विच विल मूव, विच विल लीड टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, दीज प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटेड. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed that the dams are the temples of modern India. जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही प्राउडली कहा था कि जो डैम्स है वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. कि इनका कहना ये था कि अगर हम डैम्स टेम्पल हैं आज के लिए, आज के ज़माने के लिए डैम्स आर द टेम्पल विच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ द विलेज इकोनॉमी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा और अर्बन इकोनॉमी ग्रो करेगी. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. आज से कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं और जो बड़े बड़े डैम्स हैं उनकी वजह से ग्रेट स्क्रूटिनी हुई है, ऑपोजिशन हुआ है फॉर द वेराइटी ऑफ रीजंस. बहुत सारे रीजंस हैं इसके. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर. तो क्या हुआ है, जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से जो नेचुरल फ्लो था रिवर का वो अफेक्ट हुआ है, जिसमें कई जगह तो सेडिमेंट्स बहुत ही पुअर है और या फिर सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो चुका है एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअर हैबिटेट ऑफ द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है. डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग. मीन्स डैम्स की वजह से वाटर में रिवर वाटर में फ्रेगमेंटेशन आया, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक फौना थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ा. The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to the decomposition over a period of time. मीन्स जो रिजर्वायर थे फ्लड प्लेन्स पे क्रिएट किए गए थे, उन्होंने सबमर्ज कर दिया वेजिटेशन को और सॉइल को, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन होने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new environmental movements. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नए नए मूवमेंट्स, environmental movements आने लगे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेरी डैम आंदोलन etc. Resistance to these projects has primarily been due to the large-scale displacement of local community. और इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा डिस्प्लेसमेंट होना. जहाँ डैम की कंस्ट्रक्शन है उसके आसपास के एरिया को सारे खाली करा दिया जाता है, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज़ को माइग्रेट करना पड़ता है. लोकल पीपल ऑफन हैव टू गिव अप देयर लैंड, अपनी लैंड देनी पड़ती है, अपनी सारी लाइवलीहुड, देयर मेयर्ज एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन. किसके लिए देना पड़ता है? फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन. So if the local people are not benefiting from such projects, then who is benefited? मीन्स अगर लोकल पीपल ही बेनिफिट नहीं हो रहे डैम की कंस्ट्रक्शन से, तो बेनिफिट किसको हो रहा है? परहैप्स द लैंड ओनर्स को, लार्ज फार्मर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और फ्यू अर्बन सेंटर्स को. टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज. डज ही रियरली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट? तो आप खुद ही सोचिए कि क्या सच में उसे गेन हो रहा है इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से? Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water intensive and commercial crops. मीन्स इरिगेशन की वजह से, इरिगेशन आने की वजह से जो क्रॉप
का पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है। फ्रॉम शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव जो ज़्यादा वाटर कंजप्शन वाले क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो किया जाता है। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी वजह से ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आ जाता है और सलाइनेशन हो जाता है सॉइल में। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप्स, मतलब इसने सोशल लैंडस्केप को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। विच इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर एंड लैंडलेस poor. As we can see, the dam did create conflict between people wanting different use and benefit from the same water resources. जो डैम के कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से conflict अराइज हो जाते हैं, people कुछ और चाहती है और अदर इंडस्ट्रीज कुछ और चाहती है, मीन सबके जो यूजेस हैं वो अलग अलग है। In Gujarat, Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to the water supply in urban areas. जो गुजरात में जो साबरमती बेसिन्स पे जो डैम बनाया गया था उसके लिए फार्मर्स ने अपोज किया, क्योंकि जो वाटर का सप्लाई था वो ज़्यादा अर्बन एरियाज में दिया जा रहा था रेदर देन इन द रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट, और जब तो सूखा पड़ता था तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefit of multi-purpose project. जो interstate है, एक मतलब दो या दो से ज़्यादा states के बीच में भी एक common dispute हो गया है आजकल water sharing के ऊपर। Now moving further, this is the map depicting various rivers and the multi-purpose project being constructed here. Most of the objections to the projects arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built. जो ऑब्जेक्शन होता है वो ज़्यादातर इसलिए होता है कि जिस पर्पस के लिए उन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया था वो अचीव ही नहीं कर पाए। Ironically, the dams were constructed to control flood and have triggered flood due to sedimentation in the reservoir. तो आयरॉनिकली जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन ये था कि वो फ्लड को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसकी वजह से फ्लड और ज़्यादा आने लगी, क्योंकि जो बैड रॉक होता है रिवर्स का, रिजर्वायर्स का, वहाँ सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई। मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। इसके साथ ही जो बिग डैम्स हैं उनकी वजह से फ्लड को तो कंट्रोल कर नहीं पाए at the time of excessive, जब ज़्यादा rainfall हो जाती है। You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rain aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. जब heavy rainfall होती है तो डैम्स को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर जो वाटर होता है वो सारा फ्लड के रूप में स्टेट्स में चला जाता है। The flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. सिर्फ जो फ्लड होती है उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होता, बल्कि जो सॉइल से इरोजन हो जाता है, सॉइल की जो अपर शीट होती है वो बिल्कुल चली जाती है। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मेंट दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट। जो सेडिमेंटेशन होता है उसका मतलब यह है कि जो फ्लड एरियाज हैं वहाँ पर सिल्ट्स नहीं है। अ नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। It was also observed that the multipurpose project induced earthquake. जो multipurpose projects हैं उनकी वजह से earthquakes भी आने लगे हैं। Caused waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water. और बहुत ज़्यादा disease भी फैल जाती हैं, pollution हो जाता है excessive use of water से। Now the next topic is rainwater harvesting. Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally friendly. बहुत सारे डिसएडवांटेजेस पढ़ने के बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की ये चीज़ निकल के आती है कि वाटर हार्वेस्टिंग वो सबसे अच्छा सिस्टम है, वो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और इन्वायरमेंटली भी। In ancient India, along with the sophisticated hydrological structure, there exists an extraordinary tradition of water harvesting system. बहुत पुराने टाइम से ही
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था. पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल regimes and soil type and develop wide ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. मीन्स बहुत पुराने टाइम से ही पीपल को इस चीज़ बहुत अच्छी नॉलेज है अबाउट द रेनफॉल रिजाइम्स, सॉइल टाइप के बारे में, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना, रिवर वाटर और फ्लड वाटर को लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस में देखकर उसका अच्छे से यूज़ करना. इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन द पीपल बिल्ट डाइवर्स channels like the Gulls and Kulls of the Western Himalayan for agriculture. मीन्स जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेनियस एरिया होते हैं, वहाँ पे गर्ल्स और कुल्स बना दिए जाते हैं हिमालयाज में एग्रीकल्चर करने के लिए. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. जो rooftop rainwater harvesting होती है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए, ज़्यादातर ये राजस्थान स्टेट में. इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन्यूडेशन चैनल्स टू, और फ्लड एरियाज हों जो बंगाल के, पीपल ने डेवलप किया इंडोनेशियन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड regions. एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर. जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं उन्हें रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पर वाटर स्टोर किया जा सकता है, इसलिए छोड़ दिया जाता है. Water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johats in other part of the Rajasthan, ताकि जिससे soil भी moisture हो जाती है. Semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmer, almost all the houses traditionally had undergone tanks or tankas for storing drinking water. जो मतलब ये सेमी एरिड और एरिड एरियाज हैं राजस्थान के, जैसे कि बीकानेर, फलोडी एंड बाड़मेर, यहाँ पे ज़्यादातर घरों में ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक्स लगाए हुए हैं ताकि वो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर कर सके. द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम. ये जो टैंक्स हैं ये इतने बड़े हो सकते हैं कि एक रूम जितने. वन हाउस होल्ड इन फलोडी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, 4.27 meter long and 2.44 meter wide. The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. जो टंकास थे ये एक पार्ट थे रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग के, जो कि बिल्ड किए जाते थे इनसाइड द मेन हाउस. दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप. ये छतों से एक पाइप से कनेक्ट किए जाते थे. रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स. और जितनी भी रेन रूफ टॉप पे, छत पे फॉल होती थी वो पाइप के थ्रू इन टंकास में फिल हो जाती था. The first spell of rain was usually not collected as this would clean the roofs and the pipes. जो पहली बारिश होती थी उसका पानी कलेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि उससे छत और पाइप दोनों क्लीन हो जाते थे. The rain water from the subsequent shower was then collected. और उसके बाद जितनी भी रेन वाटर होती थी उसे कलेक्ट किया जाता था. The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up. इन टंकास को तब तक भर के रखा जाता था तब तक दूसरे सीजन में रेनफॉल नहीं होती थी, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. और अगर सारे सोर्स सूख भी जाते हैं पानी के तो ये काम आ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, पर्टिकुलरली इन समर्स, रेन वाटर और पालर पानी आर कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट. और समर्स के टाइम में तो ज़्यादातर इस चीज़ को फिल करके रखा जाता था, एज इट इज़ कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. नेचुरल वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है रेन वाटर को. मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल. जो ये हाउसेस में टंकास बनाए जाते थे इसके साथ और भी रूम्स बनाए जाते थे क्योंकि समर के टाइम में ये रूम्स दूसरे रूम को भी ठंडा कर देते थे. टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान, सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग is on decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal.
और आजकल जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकती बिकॉज जो वाटर अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबल हो गया उन्हें बिकॉज ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल. दो सम हाउसेस स्टिल मेंटेन द टंका सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर. लेकिन कई लोग इसे मेंटेन करके रखते हैं बिकॉज दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर. Fortunately, in many parts of the rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water. And मतलब जितने भी रूरल एरियाज थे चाहे अर्बन एरियाज थे, सब जगह रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाने लगी, विच इज़ वेरी इजी टू कंजर्व द वाटर. In Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, मीन्स कर्नाटका स्टेट में एक विलेज है मैसूर, वहाँ पर विलेजर्स ने इंस्टॉल किया था रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ताकि वो अपनी वाटर की नीड्स को फुलफिल कर सके. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. ऑलमोस्ट 200 हाउसेस ने ये सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लिया और आज ये स्टेट बहुत ही रिच माना जाता है रेन वाटर कलेक्शन में. See figure 3.6 for better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here. So this is here you can see the rooftop are connected through a pipe to conserve the rainwater in the tankas made in the houses. Gendathur receives an annual precipitation of 1000 mm and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. मीन्स गेंडाथुर में जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, वो 1000 मिलीमीटर होती है, विच इज फ्रॉम विच दे कैन कलेक्ट द 80% ऑफ द वाटर in about 10 fillings and every house can collect 50,000 liters of water annually. From the 200 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts for 1 lakh liter. और अगर 200 houses की बात करें तो वो annually 1 lakh liter water को collect कर सकते हैं. So here this chapter ends. Thank you for watching our video and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel for more videos.